नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आंतरिक आरक्षण की मांग कर रहे मादिगा समुदाय ने बीआर भास्कर प्रसाद के नेतृत्व में क्रांतिकारी रथ यात्रा का किया स्वागत। कावेरी आरती गंगा अनुष्ठानों को प्रतिबंधित करेगी, सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाएगी डीके शिव कुमार। 2 सप्ताह में सांप्रदायिकता विरोधी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, गृह मंत्री जी परमेश्वर। कन्नड़ कहने पर पहलगाम पर हमला, गायक सोनू निगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ओडिशा कटक में पुल का स्लैब गिरा, 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासी नेटवर्क का किया भांडाफोड़। अब समाचार विस्तार से। आंतरिक आरक्षण की मांग कर रहे मादिगा समुदाय ने बीआर भास्कर प्रसाद के नेतृत्व में क्रांतिकारी रथ यात्रा का स्वागत किया, जो बीदर शहर के अंबेडकर सर्कल पर पहुंची। इस अवसर पर मादिगा डंडोरा संघर्ष समिति के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष फर्नांडिस हिप्पलगांव, जिला अध्यक्ष विजय कुमार हिप्पलगांव, स्वामीदास केम्पेनोर, पीटर श्रीमंडल, रमेश कट्टीगुआ और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ರೂವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ. ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆಗ್ರಹಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ರವರ ಜಯಂತಿಯ ದಿವಸ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ರವರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಗ್ರಹಿಸೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯ ದೊಡ್ಡದು. ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ರವರನ್ನ ನೀವು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಬಹಿರಂಗವಾದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮನ ಬರ್ತಡೇ ದಿವಸ, ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ರವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾದಂತಹ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ನಂತರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ದತ್ತಾಂಶ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ದಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದತ್ತಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಎಣಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ವೆಗೂ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ದತ್ತಾಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದಂತಹ ಅಂಕಿಅಂಶ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದಂತಹ ಅಂಕಿಅಂಶ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾವನೂರು ವರದಿ ಇದೆ, ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಇದೆ, ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಇದೆ, ಮಧುಸ್ವಾಮಿ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮತ್ತೆ KPSC ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜಾತಿವಾರ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ತೆಗೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ದತ್ತಾಂಶ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ಸಾಕು ನನ್ನಂತವನಿಗೆ. ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 2 ದಿವಸ ಸಾಕು ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 4 ಆಯೋಗಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶ ತೆಗೆದು ಇವತ್ತಿನ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಸಾಕು. KPSCಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖಾವಾರು ಜಾತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಮೂಲ ಜಾತಿ ಸಮೇತ ಇವಾಗೊಂದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾತಿದೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಡೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ, ಯಾವುದೋ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಚುಕ್ಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ತರಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು? ಎಷ್ಟು 1000 ಎಕರೆ ಕಬಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಹುಲಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜಿಂಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ತರಿಸ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು. ನಾವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಅನ್ಯತೆ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟಗಾರರೇ, ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಉಪಜಾತಿ ಬಂಧುಗಳು ತಾವೆಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೀದರ್ಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಕಾರಣ
63-64 ದಿವಸ ಬಿ ಆರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಹೆಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡ ಸರ್ಕಾರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೀನಮೇಷ ಮಾಡೋದು, ಹೇಳೋದೊಂದು ನಡೆಯೋದೊಂದು ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಜಯಂತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 147 ಜನರಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕೊಡ್ತಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇವತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದಂತ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾದಿಗರು ಮತ್ತು ಉಪಜಾತಿಗಳು ತಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಕಾರಣ, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೇನು ಬರ್ತದ ಪಾಲ ಬಂದೇ ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಕೊತ್ತ ಬಂದ, ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದೇ ಮಂದಾಕೃಷ್ಣ ಮಾದಿಗವರು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು, ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ. ಆಂಧ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ತೆಲಂಗಾಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ತಮಿಳುನಾಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತನ್ನ 30 ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟ, ತನ್ನ 2 ಕಾಲುಗಳು ಮುರ್ಕೊಂಡು 5-6 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂದಾಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣವರು ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 15 ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಾರ್ಡರ್ದಿಂದ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿವಿ. ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ, ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾದಿಗರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 28 ಜನ ಮೇಲೆ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದಾರ. ನಾವ್ಯಾರು ರೌಡಿಗಳ ಬಂಧುಗಳೇ? कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शनिवार को कहा कि वाराणसी की गंगा आरती की तर्ज पर मांड्या जिले में कृष्णराज सागर बांध के पास होने वाली कावेरी आरती धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाएगी। सरकार का लक्ष्य दशहरा तक इस कार्यक्रम को शुरू करना है और वह आरती देखने के लिए लगभग 10,000 लोगों की व्यवस्था करने की योजना बना रही है। शिव कुमार, जो जल संसाधन विभाग के भी प्रमुख हैं, ने कावेरी आरती के आयोजन पर चर्चा करने के लिए पर्यटन मंत्री एच.के. पाटिल, धार्मिक बंदोबस्ती मंत्री रामलिंगा रेड्डी, कन्नड़ और सांस्कृतिक मंत्री शिवराज तंगदगी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, तैयारियां चल रही हैं। कावेरी आरती केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं है, हम तमिलनाडु और केरल के सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को भी इसमें शामिल करने की योजना बना रहे हैं। हमने इस बात पर भी चर्चा की है कि इस सप्ताह में कितने दिन आयोजित किया जाना चाहिए और पूजा अनुष्ठानों का प्रारूप क्या होना चाहिए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिव कुमार ने कहा कि कावेरी नदी में समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलता है और साझा परंपराओं को दर्शाने के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली आरती का आयोजन जल संसाधन, कन्नड़ और संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक बंदोबस्ती विभागों द्वारा किया जाए। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शनिवार को दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में सांप्रदायिक घटनाओं की जांच के लिए मंगलूर में एक सांप्रदायिक विरोधी टास्क फोर्स की स्थापना की घोषणा की। अशरफ और सुहास शेट्टी की हत्याओं के बाद बढ़ते तनाव के बीच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने घोषणा की कि 2 सप्ताह के भीतर एक एंटी कम्युनिस्ट टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो एंटी नक्सल फोर्स की तर्ज पर होगा। टास्क फोर्स का नेतृत्व महानिरीक्षक आईजी या उससे उच्च रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसकी संरचना के बारे में बाद में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। गृहमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए एसीटीएफ को सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली ताकतों और उनके समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के अधिकार दिए जाएंगे। एटीसीएफ सांप्रदायिक भाषणों, बयानों और सोशल मीडिया पर नजर रखेगा और उल्लंघन करने वालों से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटेगा। सिंगर सोनू निगम को बेंगलुरु में एक शो के दौरान पहलगाम आतंकी हमले को लेकर टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। सोनू निगम इसे लेकर मुश्किल में फंस गए हैं। शहर की पुलिस ने शनिवार को एक एफआईआर दर्ज की है। सिंगर ने सोशल मीडिया पर भी अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए पोस्ट किया और उनका दावा है कि उन्हें धमकाया गया था। बेंगलुरु के वीरगोनगर में ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 25-26 अप्रैल को आयोजित एक संगीत कार्यक्रम के दौरान सोनू निगम को कथित तौर पर एक युवक ने कन्नड़ में गाने के लिए बार बार कहा, जिस पर उन्होंने गुस्से में जवाब दिया था। सिंगर ने कहा, मैंने कन्नड़ सहित विभिन्न भाषाओं में गाने गाए हैं। जब भी मैं कर्नाटक आता हूं, मैं बहुत प्यार और सम्मान के साथ आता हूं। आप सभी ने मेरे साथ परिवार की तरह व्यवहार किया है। उन्होंने कहा, जब भी मुझसे अनुरोध किया जाता है, मैं हमेशा कन्नड़ गाना गाता हूं।
मैं उस युवक के जन्म से पहले से कन्नड़ में गाता रहा हूं, लेकिन मुझे उसका कन्नड़ चिल्लाना पसंद नहीं आया। इस तरह के व्यवहार के कारण ही पहलगाम हमले जैसी घटनाएं होती हैं। इस टिप्पणी से फिल्म निर्माता कार्तिक गौड़ा और कन्नड़ एक्टिविस्ट SR गोविंदू सहित कई लोगों ने नाराजगी जताई और निंदा की। शुक्रवार को कन्नड़ समर्थन संगठन कर्नाटका रक्षण वेदिके ने बेंगलुरु के अवड़हल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें सोनू निगम के बयानों से कन्नड़ समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। शनिवार दोपहर को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में सोनू निगम ने कहा कि कार्यक्रम में उन्हें जो सामना करना पड़ा वह कन्नड़ गीत की मांग नहीं थी बल्कि धमकी थी। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। विधायक संजय बसवनगौड़ ने पिछले 5 वर्षों में उदगीर विधानसभा क्षेत्र के भौतिक विकास के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर विधानसभा क्षेत्र का कायापलट किया है। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं को आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया है, जिसमें उदगीर जैसे स्थानों पर विश्व शांति बुद्ध विहार का निर्माण और मुहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित करके इस विहार का उद्घाटन समारोह शामिल है। ऐसा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा। वे उदगीर शहर में विश्व शांति बुद्ध विहार का सद्भावना दौरा करते हुए बोल रहे थे। इस अवसर पर तहसीलदार राम बोरगांवकर, समूह विकास अधिकारी प्रवीण सुरदकर, पुलिस निरीक्षक राजकुमार पुजारी, चंद्रकांत चिट्टे, देवीदास कांबले, सैयद जानी मियां, शशिकांत बंसोड़े, अनिल मुदाड़े, ज्ञानेश्वर बिरादर, हिब्जू रहमान हाशमी, नरसिंह कदम, शाहबाज शेख आदि उपस्थित रहे। आगे बोलते हुए ना रामदास अठावले, ए संजय बंसोड़े, प्रशासकीय भवन, सरकारी विश्राम गृह, मराठा भवन, लिंगायत भवन, बौद्ध विहार, शादी खाना, सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय, तिरू नदी पर बैरेज, महावितरणी कार्यालय, ग्रामीण अस्पताल, महापुरुषों की प्रतिमाएं, जलकोट और उदगीर शहर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा गया। विभिन्न वाड़ी तांडिया योजनाएं लाई गई, जल ग्रिड योजना लाई गई। भविष्य के बेरोजगारी को देखते हुए उदगीर और जलकोट के MIDC में बेरोजगारी के मुद्दे को हल करके यहां के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया गया। उनके काम के प्रतीक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने 93,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत दिलाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और समुदाय के लोग मौजूद रहे। उदगीर से संवाददाता नौशाद की रिपोर्ट। भाजपा ने कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में एक वीडियो शेयर किया, जिसके शुरुआत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भगवान राम पर टिप्पणी करते हुए सुने जा सकते हैं। इसके बाद भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला राहुल गांधी और कांग्रेस पर कई आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पोस्ट में लिखा, राष्ट्रद्रोही कांग्रेस अब रामद्रोही कांग्रेस। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रभु राम पौराणिक या काल्पनिक है। इस तरह और क्यों उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया और प्रभु राम के अस्तित्व पर भी संदेह जताया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जवान मुनीर अहमद को एक पाकिस्तानी महिला से अपनी शादी की बात छिपाने के कारण सेवा से बर्खास्त किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मुनीर देश के प्रमुख आंतरिक सुरक्षा बल अर्धसैनिक बल CRPF की 41वीं बटालियन में तैनात थे।
आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि मुनीर को उन नियमों के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया है जिनके तहत जांच की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि मुनीर अहमद को एक पाकिस्तानी नागरिक से अपनी शादी की बात छिपाने तथा उसकी वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद उसे शरण देने के आरोप में तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया गया है। सीआरपीएफ की प्रवक्ता उप महानिरीक्षक एम दिनाकर ने कहा कि मुनीर की कार्यवाही को सेवा आचरण का उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक पाया गया। मुनीर अहमद की पाकिस्तानी मनाल खान से शादी की बात तब प्रकाश में आई जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजनयिक उपायों के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने की सलाह दी गई थी। इस हमले से 26 पर्यटक मारे गए थे। दोनों ने पिछले साल 24 मई को वीडियो कॉल के जरिए शादी की थी। सीआरपीएफ की जांच में पाया गया कि जवान मुनीर ने अपनी शादी और अपनी पत्नी के भारत में लंबे समय से तक रहने के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित नहीं किया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उड़ीसा से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यह हादसा कटक के खाननगर इलाके में एक पुल के निर्माण के दौरान एक क्रेन के गिरने से हुआ है। इस दुखद घटना में 3 मजदूरों की मौत हुई है जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कटक के खाननगर इलाके में शनिवार को एक पुल पर काम चल रहा था। यह काम काठजोड़ी नदी पर एक पुल के निर्माण का था। इस दौरान जब एक क्रेन जो कुछ भारी कंक्रीट स्लैब पर उठा रही थी वह गिर गई और क्रेन के नीचे काम कर रहे मजदूर स्लैब के नीचे दब गए। इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए मजदूरों को इलाज के लिए कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घटना पर गहरा शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि घायल मजदूरों का इलाज पूरी तरह से मुफ्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बातें करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पहलगाम हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी से समय पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने भारत में रहते हुए आतंकी हमले की निंदा क्यों नहीं की। अधीर रंजन चौधरी ने आगे दावा किया कि सरकार के पास आतंकी खतरे से संबंधित खुफिया जानकारी रही होगी, फिर भी यह घटना हुई। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नेटवर्क का भांडाफोड़ करने पर दक्षिण पूर्व डीसीपी रवि कुमार सिंह ने कहा, दक्षिण पूर्व जिले में 75 से अधिक अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ा गया है। हमने 47 बांग्लादेशियों और 5 भारतीय मददगारों को हिरासत में लिया और गिरफ्तार किया। जब हमने हाल ही में पहली बार एक प्रवासियों को पकड़ा तो चांद मियां का नाम सामने आया। उसे पकड़ने और रोकने के बाद हमने चेन्नई में 33 और विजयवाड़ा में 8 प्रवासियों को पकड़ा। चांद मियां बांग्लादेश जाता है और 7 से 10 के समूह में निर्माण श्रमिकों और अन्य लोगों को भारत लाता है। इस गठजोड़ की जांच चल रही है और गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आंतरिक आरक्षण की मांग कर रहे मादिगा समुदाय ने बीआर भास्कर प्रसाद के नेतृत्व में क्रांतिकारी रथ यात्रा का किया स्वागत। कावेरी आरती गंगा अनुष्ठानों को प्रतिबंधित करेगी, सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाएगी डीके शिव कुमार। 2 सप्ताह में सांप्रदायिकता विरोधी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, गृह मंत्री जी परमेश्वर। कन्नड़ कहने पर पहलगाम पर हमला, गायक सोनू निगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उड़ीसा कटक में पुल का स्लैब गिरा, 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासी नेटवर्क का किया भांडाफोड़। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।